پاکستان میں ہمیشہ کچھ ریڈ لائنز رہی ہیں۔ ایک دن پہلے تک مریم نواز صاحبہ بھی پنجاب میں ریڈ لائن تھیں، لیکن ایک دن پہلے تک کیوں تھیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ مریم نواز کو اپنی پارٹی کے اندر کس قسم کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اور یہ ہے کہ اس خبر کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم KPK میں کل جو امن جرگہ منعقد ہوا ہے اس کو ہم اٹینڈ کر لیتے ہیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں، دوبارہ ہم اس خبر پہ واپس آئیں گے۔ کل جمرود فٹ بال گراؤنڈ میں سہیل خان افریدی نے ایک جرگہ بلایا ہے۔ اس سے 2 دن پہلے وہاں پر سیاسی اتحاد کا ایک جرگہ منعقد ہوا تھا باجوڑ میں، اور وہ جو جرگہ تھا اس کو حکومتی سرپرستی جناب والا اس کو حاصل تھی، اور اس کو میڈیا کی کوریج ملی ہے۔ اور وہاں پہ تو میڈیا کی کوریج کیا تھی، ان کے تو سب ٹائٹل وہاں پر چلائے گئے ہیں میڈیا کے اوپر، لیکن کل یہ جو جرگہ منعقد کیا گیا اس کو کوئی بھی میڈیا کوریج نہیں ملی، اور یہ واحد جرگہ ہے جس میں کسی بھی پارٹی کا جھنڈا نہیں تھا، صرف اور صرف سفید جھنڈے تھے۔ سفید جھنڈا امن کی علامت ہوتا ہے، وہاں پر امن جرگہ منعقد کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کی تفصیلات میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جناب والا قومی ترانے سے اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو جرگہ منعقد کرنے کا جو خصوصی مقصد تھا، کچھ وہ جو سوالات تھے، بھائی تیرا کا جو آپریشن ہے وادی تیرا کا، وہ کس نے شروع کروایا؟ وفاق نے شروع کروایا؟ KPK گورنمنٹ نے شروع کروایا؟ کون ہے ذمہ دار؟ اسی وجہ سے اس کے ریبٹل کے لیے شروع میں ہی خواجہ آصف صاحب، جناب طلال چودھری صاحب، یہ جو حکومتی مین جو وہ منسٹرز ہیں، سینیٹرز ہیں یا نمائندے ہیں، ان کی تقاریر چلائی گئی ہیں جو کہ سینٹ میں یا نیشنل اسمبلی کی ان کی تقاریر تھیں۔ اس میں واضح دکھایا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ کس نے جناب یہ جرگہ منعقد کروایا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ سہیل خان افریدی نے جیسے اسٹیج پر آئے، وہاں پر کون کون سے قبائل کے لوگ وہاں پر موجود تھے، سول سوسائٹی کے کون سے نمائندے وہاں پر موجود تھے، ان کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اسٹیج پر موجود افریدی، شنواری، ملاگوری اور شلمانی اقوام کے عزت دار، غیرت مند اور بہادر معزز مشران و عمائدین کو السلام علیکم، یہ بیسیکلی انہوں نے شروعات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سکھ اور مسیحی برادری کے معزز مشران، ڈاکٹرز، تاجران اور پنڈال میں موجود تمام اقوام کے نوجوانوں، بزرگوں اور تمام معزز حاضرین کو بھی انہوں نے سلام کہا ہے۔ اور یہ کہنے سے پہلے انہوں نے پھر بلوچستان کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں یہ جو حملے ہوئے ہیں 2 دن پہلے کی انہوں نے بات کی ہے، اور اس کی انہوں نے کہا کہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی دہشت گردی کے ہم خلاف ہیں، کسی بھی قسم کی دہشت گردی ہو، وہ بلوچستان میں ہو، وہ سندھ میں ہو، وہ KPK میں ہو، ہم صرف اور صرف امن کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کو بھی پیغام تھا، ان فورسز کو جو کہ کہتی تھیں کہ بھائی یہ دہشت گردوں کے سپورٹر ہیں، دہشت گردوں کو یہ پناہ دیتے ہیں، دہشت گردوں کے کہ یہ ہم ہی ہے بیسیکلی، وہ پاکستان کے اندر دہشت گرد ہوں یا پھر پاکستان کے باہر افغانستان کے اندر وہ دہشت گرد ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور عوام بلوچستان کے مختلف اضلاع میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ بیسیکلی انہوں نے اپنے اینڈ کے اوپر یہ بات نہیں کہ انہوں نے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی پالیسی اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کی پالیسی کو بھی انہوں نے واضح کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں۔ آگے جناب انہوں نے کہا کہ آج ہم اس جرگے میں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جھوٹے پراپیگنڈے کو توڑا جائے۔ سوال کیا جا رہا ہے کہ 4 ارب روپے کیوں ریلیز کیے گئے، حالانکہ پہلے آپریشنز میں وعدہ کیا گیا تھا کہ جن کے گھر تباہ ہوں گے انہیں 4 لاکھ روپے دیے جائیں گے، مگر وہ رقم بھی متاثرہ قبائلیوں کو ابھی تک بھی نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے جب اعلان کیا ہے وہ بھی ان کو اعتراض ہے، یہ جو اعلان کرتے ہیں وہ نہیں دیتے، ہم اس کے اوپر جو اعتراض لگاتے ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں جناب برا بھلا کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ سوال ہی کیوں کیا ہے، وہ جو 4 لاکھ روپے والا وہ جو میٹر ہے۔ اچھا، آگے تھوڑا سا انہوں نے اور بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جو منسٹری آف انفارمیشن کی طرف سے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپریشن ہے یہ ہم نے شروع نہیں کیا، یہ KPK گورنمنٹ نے شروع کیا ہے۔ وہ جو ایک پریس ریلیز جاری کی گئی تھی آج سے 3-4 دن پہلے، ہم نے بھی اس کے اوپر ایک ڈیٹیل سے ولاگ کیا تھا۔ اس کے اوپر انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جس میں یہ بھی کہا گیا کہ جناب یہ جو 24 رکنی وادی تیرا کا وہ جو آپریشن ہے، 24 رکنی وہ جو کمیٹی ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے، جس کو حکومتی سرپرستی جس کو حاصل تھی ہے۔ حکومتی سرپرستی سے مراد یہ ہے کہ وفاق، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے، اتحادی حکومت۔ سہیل خان افریدی نے کہا کہ 24 رکنی کمیٹی میں کور کمانڈر اور IGFC اس سارے مرحلے میں شامل تھے اور وہ اس سارے پروسیس سے باخبر تھے۔ آپ کا نوٹیفیکیشن یا پریس ریلیز آپ کے ہی کور کمانڈر اور IGFC کے خلاف عدم اعتماد کا ثبوت ہے۔ آپ خود ان پر عدم اعتماد کر رہے ہیں، آپ پریس ریلیز کے ذریعے ان کی حیثیت کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ جناب والا سہیل افریدی نے جو 24 رکنی کمیٹی
और जिनकी बुनियाद के ऊपर 2 दिन पहले बाड़ा में भी एक जिरगा मुनक़िद हुआ है, जिसको हमने शुरू में आपसे कहा था कि जिसको सबटाइटल चला चला के जनाब के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जनाब उसको कवरेज दी गई है। और उसके बाद में जनाब वो जनाब तलाल चौधरी साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब, उनके बयानात भी सामने। उन्होंने कहा कि भाई देखें भाई, फैसला आ चुका है, ये KPK की आवाम का फ़ैसला है, ये पूरे खैबर का फ़ैसला है, तीरा के लोगों का फ़ैसला है। ये जो KPK गवर्नमेंट है ये बिल्कुल झूठी साबित हो चुकी है, ये बिल्कुल फ़ैसला इनके खिलाफ आया है। आज जो कोई फैसला आया है वो उसके सिर्फ विजुअल्स आप देखें, फुटबॉल ग्राउंड के अंदर कितने लोग वहाँ पर जमा हुए। उसके अलावा ये है कि वहाँ पे जो लोगों ने जो नारे लगाए और जो तरतीब है जिरगा मुनक़िद करने की, तकरीरें चलाई गई, कौमी तराना चलाया गया, दहशतगर्दी की मजम्मत की गई। उसके अलावा ये है कि सबूत के साथ सामने बातें की गई हैं, 14 अरब की क्लैरिफिकेशन दी गई है। उसके अलावा 24 रुकनी जो कमेटी है उसकी जो हैसियत है उसको सामने रखा गया है। उसकी हैसियत ये लोग खुद ही उसको ख़त्म करने पर तुल चुके हैं। आगे जनाब उन्होंने ये कहा कि मुराद सईद जब चीखता था सवात में कि ये लोग, ये जो दहशतगर्द हैं सवात में वापस आ रहे हैं, उनके वीडियो सबूत भी मौजूद है। बल्कि वो तो मैंगोरा के करीब, मैंगोरा वो जो एक मज़ाफ़ात हैं सवात के, वहाँ पर वो दंदराते फिर रहे थे। तब इन लोगों ने उनके खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं किया? तब ये लोग सामने क्यों नहीं आए? और जनाबे वाला उन्होंने कहा कि बंद कमरों के फैसलों का ये नतीजा निकला है। ये जो लोग आज सामने बैठे हुए हैं, ये इनसे पता करें ये किससे मोहब्बत करते हैं और किससे नफरत करते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि ये जो दहशतगर्द हैं हमारे घर तक कैसे पहुँच जाते हैं, जब बॉर्डर मैनेजमेंट भी हो चुका है, अरबों रुपए कौम के जेब से खर्च हो चुके हैं, टैक्स पेयर मनी के। उसके अलावा ये है कि ये लोग बॉर्डर भी क्रॉस कर जाते हैं, KPK में दाखिल होते हैं, कबायली इलाकों में दाखिल होते हैं, इनको रास्तों का भी पता चलता है और हमारे घर तक ये पहुंचते हैं। और अगर यहाँ पर पहुंचते हैं गन पॉइंट के ऊपर, हमारे घर आकर बैठकर खाना खाते हैं, अगर हम उनको रजिस्ट करते हैं तो वो लोग हमें मारते हैं। अगर वो जैसे ही नाश्ता करके जाते हैं, खाना खा के जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले पहुंच जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हमसे पूछते हैं कि आपने उन्हें क्यों बिठाया। अगर जब हम जवाब पेश करते हैं तो फिर ये हमें मारते हैं, कहते हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, एक तरफ दहशतगर्द हैं, दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। उन्होंने कहा कि हम किसकी माने, किस को रजिस्ट करें, जिन्हें रजिस्ट करते हैं वो ही हमें मार देते हैं। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हमारे घरों के ऊपर ड्रोन हमले किए गए, हमारे घरों को मसमार किया गया, हमारी नस्लें उजाड़ी गई, हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें दर बदर वो ठोकरें मारती फिर रही हैं, ठोकरें खाती फिर रही हैं। और उन्हें फिर ये जो तीरा की ये जो वो हुआ है, ये जो माइग्रेशन हुई है, IDPs इंटरनली डिस्प्लेस्ड, वो जो पीपल हैं वहाँ से जो उनके रवाना हुए हैं, उनकी तकलीफ़ को उन्होंने उजागर किया है। उसके अलावा ये है कि उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए अंदाज़ा लगाएं कि इस सख्त सर्दी में जब बर्फबारी हो रही है उस वक्त ये लोग क्या खुशी से यहाँ पर वो होंगे, शिफ्ट होंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरीके से कहा कि ये एक रूटीन मैटर है और ये ऐसा होता आ रहा है। उनने फिर वो अंग्रेज़ों के वो जो बुक्स का वो जो हवाला दिया कि अंग्रेज़ दौर से ये चलता आ रहा है। जनाबे वाला 1 साल पहले तो नहीं हुआ था, ये इसी साल ही क्यों हुआ है? पिछले 5 साल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस साल क्यों हुआ है? खैर बहुत सारे सवाल आते हैं, हम तो नहीं करना चाहते, हम तो सिर्फ खबर आप तक पहुँचा रहे हैं क्या कुछ हुआ है। अच्छा, आगे जनाब हम दोबारा में उस खबर की तरफ वापस आते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा, सवालात ये किए जा रहे थे कि जनाब वाला ये जो MPAs हैं शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ साहब के करीब थे या फिर आज मरीम नवाज़ साहबा के करीब हैं, वहाँ पर उनको रसाई हासिल है। जाहिद गजकोरी हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, उनकी खबर को उमर दराज गोंदल साहब ने कोट किया है, उसको कवर किया है, वही खबर हम आपके सामने रखने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जनाब वाला जब उनसे पूछा गया है और उन्होंने कहा कि हमारी उन तक कोई रसाई नहीं है, अब उन्हें बाकायदा तौर पर अंदर बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है। जंग ये है कि भाई इलेक्टेड लोगों की रसाई मरीम नवाज़ साहिबा तक है या फिर नॉन इलेक्टेड लोगों की रसाई आसानी से मरीम नवाज़ साहिबा तक है। सवाल ये है, जंग ये है, लेकिन नॉन इलेक्टेड जो लोग हैं वो आसानी से मरीम नवाज़ साहिबा तक पहुंच जाते हैं, इसी वजह से उन्हीं की ही सुनी जाती है। अब ये है कि जनाब वाला ये जो 45 MPAs हैं जिनके बारे में ये खबर सामने आ रही है कि जनाब इनने बाकायदा तौर पर फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने की तैयारी कर ली है। अनकरीब कोई प्रेस रिलीज़ भी जारी हो जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, या तो फिर ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर इनको सिस्टम इनको सपोर्ट करेगा। सिस्टम से मुराद एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है और MPAs जो भी होंगे वो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि भाई ऐसा बनाया जाए, या तो फिर खुद ब खुद बने जाए या फिर वो उनको खुद बनाया जाए। लेकिन सवाल ये भी आता है कि सामने कि मरीम नवाज़ साहिबा भी सिस्टम की चहीती हैं, सिस्टम के चहीते हुए बगैर वो वज़ीर आला बन भी नहीं सकती थी। लेकिन ये है कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर ही फ़ज़ा क्लियर हो जाएगी। देखते हैं कि इसका
क्या ऊँट किस करवट बैठता है। और मरीम नवाज़ साहिबा जो कि कल तक नाकाबिल शिकस्त समझी जा रही थी और मतलब ये है कि वो एक रेड लाइन थी, आज वो रेड लाइन नहीं है। और ये है कि अब अंदाज़ा लगाएं कि ये जो भाटी गेट वाला वाक़या बेसिकली दो वजूहत थी, इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड वाली बात, और भाटी गेट में वो जो माँ और बेटी के गटर में गिर जाने वाला वाक़या था। और उसके बाद जो नताइज सामने आए वही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। जनाबे वाला डीसी साहब के ऊपर कोई बात नहीं आई, एसी पे कोई बात नहीं आई, वो जो एसपी बिलाल है उस पर कोई बात नहीं आई, और वो जो डीएसपी हैं उनको सिर्फ शोगास नोटिस जारी किया गया। जो ऊपर ऊपर के जो लोग हैं, अब ये जो ठेकेदार हैं या वो जो कंसल्टेंट इंजीनियर्स हैं, उन्हीं को सिर्फ उनको गिरफ्तार किया गया है, और वो जो एसएचओ है उसको मुअत्तल किया गया है। एसएसपी ऑपरेशन के खिलाफ कोई बात नहीं हुई। डीएजी ऑपरेशन के बारे में भी बातें हो रही हैं, जनाब फैसल कामरान खान साहब, उनके ऊपर भी कोई, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी वजह से वो कह रही हैं कि मरीम, अच्छा उन्होंने जनाब वाला मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी जो उनकी मिनिस्टर हैं अज़मा बुखारी साहिबा, उनको किस तरीके से वो पतली गली से उनको निकाल दिया है। और वो सहाफ़ती बरादरी तो ये भी कह रही है कि जब गलत खबर इस तरह की हम देते हैं, फेक न्यूज़ जिसको कहा जाता है, तो हमारे खिलाफ पीका एक्ट लगाया जाता है। मरीम अज़मा बुखारी साहिबा के ऊपर कोई भी एक्ट नहीं लगाया गया, इनके ऊपर भी पीका एक्ट आप लगाएं। इन्होंने भी फेक न्यूज़ नहीं कहा है, बल्कि इन्होंने तो मीडिया पे आके इन्होंने कहा है कि बिल्कुल प्रेस रिलीज़ इन्होंने जब वो की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया कि भाई ये फेक न्यूज़ है, ये जो गटर में वो जो एक माँ और बेटी गिरे हैं। उसके अलावा पुलिस का जो रवैया था, और पुलिस ने जिस तरीके से उसके शौहर के ऊपर तशद्दुद किया है, मतलब डूब मरने का मकाम है। आप इसी से अंदाज़ा लगाएं, थोड़ी देर के लिए एक शख्स है, उसकी 10 महीने की उसकी बेटी हो और उसकी बीवी हो, मतलब यह है कि सब कुछ उसका गटर में गिर गया। आप उसको गिरफ्तार करें, उसको थाने ले जाएं, उस पर तशद्दुद करें, बल्कि उसकी तो वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं। उसकी लेफ़्ट साइड से उसको देखा जा सकता है कि जिस तरह उन्हें शलवार, और उसने शर्ट ऊपर की है, शलवार थोड़ी सी नीचे की है, आप देखेंगे उसके ऊपर लैशेस पड़े हुए हैं उसके जिस्म के ऊपर। मतलब उसको किस कुर्ब से वो बंदा गुजर रहा होगा। आपने थाने के अंदर ऊपर लिटा के जनाब उसके ऊपर पांचा फिट किया है। डूब मरने का मकाम है सबके लिए, आपके लिए भी, हमारे लिए भी। ये माँ और बेटी गटर में नहीं गिरे, ये मरीम नवाज़ हुकूमत गटर में गिरी है, ये पूरी कौम गटर में गिरी है, पाकिस्तान की, पंजाब की खसूसन इंतज़ामिया गटर में गिरी है। डूब मरने का मकाम है हम सब के लिए। खैर, इसके ऊपर तो जितना बातें की जाए उतना ही कम है। आज नेशनल असम्बली का भी एक इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें इमरान खान साहब का वो जो एक केस है, वो जो अलकादिर ट्रस्ट वाला, क्योंकि नैब के स्कोप से वो निकल चुका है, वहाँ पर चैलेंज हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के सेशन हाई कोर्ट से भी निकल चुका है, लाहौर हाई कोर्ट से भी निकल चुका है। अब ये चाह रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ना जाए। सुप्रीम कोर्ट की हैसियत तो आपको पता चल चुकी है। आज कोई अमेंडमेंट लाई जा रही है, आज कोई बाकायदा तौर पर कोई बिल पास होना है कि ये जो केस है, ये इस तरह की इसकी नौयत में इसके ऊपर इसका लाया जाए कि जनाबे वाला फिर वो आईनी अदालत में इसको जाके चैलेंज किया जाए। आईनी अदालत में आपको पता है किस तरीके से वहाँ पर लोग बैठे हुए जैद, वो वहाँ पर जो जजेस बैठे हुए हैं, और बस इसके ऊपर तो हम मज़ीद बात नहीं करना चाहते, और तौहीन अदालत न लग जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।